کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات غیر حتمی نتائج کے مطابق صدر کی نشست پر ایڈوکیٹ عامر سلیم فاتح قرار پائے ہیں، جبکہ نائب صدر کی نشست پر ایڈوکیٹ ممتاز مہدی کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے ممتاز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ ممتاز، کہیے گا نتائج کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت میں موجود ہوں سٹی کورٹ کراچی میں۔ کراچی بار کے سالانہ انتخابات کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جو ہے سامنے آ چکے ہیں، جس میں صدارتی نشست پر ایڈوکیٹ عامر سلیم جو ہے فاتح قرار دیے گئے ہیں، نائب صدر کی نشست پر ممتاز مہدی صاحب جو ہے فاتح قرار دیے گئے ہیں، جبکہ جنرل سیکرٹری کی نشست پر وقار عالم عباسی جو ہے فاتح۔ اس وقت ممتاز مہدی کے جو حامی ہیں یہ جشن منا رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سندھی ثقافتی گانے ہیں اس میں جشن کر رہے ہیں۔ پیچھے نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے صبح 9 بجے سے شروع ہوا تھا، 5 بجے تک جاری رہا۔ ابھی نتائج کا آنا سلسلہ جاری ہے، لیکن جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہیں اس میں ممتاز علی مہدی جو ہے وہ نائب صدر کی نشست پر فاتح قرار دیے گئے۔ بڑے حامی یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ممتاز مہدی کے حامی ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ پورے 3-4 ماہ محنت کی، کیا اس کامیابی پر کیا کہنا ہے؟ ہم جو ہے کراچی بار ایسوسی ایشن کے جو ممبران ہیں ان کی محبتوں کے مقروض ہیں، اور یہ جو ہمارا اوپر انہوں نے قرض دیا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنا جو پریشیس ووٹ، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بار ایسوسی ایشن کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ بار ایسوسی ایشن کے نمائندگان کو چوز کرنے کے ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں جو تاج پہنایا ہے آج، ہم ان کے لیے صدیوں کے لیے ان کے مقروض ہو گئے۔ اور جو کراچی بار ایسوسی ایشن نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، بھاری مینڈیٹ سے کامیاب کیا ہے، تو ہم اس کے لیے مقروض ہیں ان کے۔ ہمارے ممتاز علی مہدی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے، ہم بہت خوش ہیں، اور انشاءاللہ کراچی بار میں وکلاء کے ویلفیئر کے لیے جتنا ہو سکے گا کریں گے۔ شکریہ۔ بالکل، اس وقت نعرے بازی چل رہی ہے، نوجوان بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، ان کا جو ہے پسندیدہ امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ یہ کون سے نعرے لگا رہے ہیں آپ؟ یہ کہ ہم جیتنے کی خوشی میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوا ہے، تو اس کی خوشی میں ہم کہہ رہے ہیں آیا 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 وکلا تاج وکلا تاج۔ بالکل گہما گہمی ہے اس وقت سٹی کورٹ میں۔ مختلف امیدوار کے حامی جو ہیں وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، اور جو فاتح امیدواروں کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے جا رہے ہیں۔ یہ سالانہ انتخابات ہوتے ہیں جس میں تقریباً 3 سے 4 ماہ امیدوار جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی محنت کرتے ہیں، اور آج ابھی تک غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کا سلسلہ ابھی آنا ہے، لیکن صدارتی نشست پر ایڈوکیٹ عامر سلیم، نائب صدر کی نشست پر ممتاز علی مہدی اور جنرل سیکرٹری کی نشست پر وقار عالم عباسی جو ہیں فاتح قرار دیے گئے۔ باقی جتنے بھی نشستیں ہیں، ایم ایم سی کے نشستیں ہیں، ان کے نتائج کا آنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ابھی فائنل جو ہے رزلٹ آئے گا، اس کے بعد ہی جو یہ طے پایا جائے گا کہ سرکاری نتائج میں کون فاتح قرار دیا گیا۔ لیکن اس وقت بھی سٹی کورٹ میں جشن کا ماحول ہے، جشن کا سما ہے، اور آپ یہ ماحول میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا ہمیں ممتاز۔ ادھر ملیر بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ وکلاء برادری کی جانب سے اپنے امیدواروں کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ شعیب مختار اس بارے میں مزید اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ جی بالکل، ملیر بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا جو ہے آج انعقاد ہوا تھا۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جو ہے یہاں پر ووٹنگ کا عمل جاری تھا۔ ووٹنگ مکمل کی جا چکی ہے، ووٹوں کی یہاں پر گنتی کی جاری ہے۔ یہاں پر مجموعی ووٹرز کی تعداد جو ہے 1144 جو ہے بتائی جاتی ہے، جبکہ ووٹنگ کا جو ٹرن آؤٹ رہا ہے 877 ووٹرز نے یہاں پر ووٹ ڈالا ہے۔ کافی گہما گہمی یہاں پر ہے۔ یہاں پر وکلاء برادری جو ہے بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ڈسٹرکٹ ملیر کورٹ میں اس وقت جشن کا سما ہے۔ یہاں پر وکلاء برادری اپنے امیدواروں کے جو ہے حق میں جو ہے نعرے بازی کر رہی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر وکلاء جو ہے اپنے پسندیدہ امیدوار کے لیے یہاں پر بلند و بانگ دعوے بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا امیدوار جیتے گا۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ لوگ بھی موجود ہیں، سینئر وکلاء بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ آج کا جو انتخابی عمل رہا، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد جمیل سلیمان ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں سینئر ایڈوکیٹ ہوں۔ یہ ہمارا سالانہ جو ہے یہ انتخابات ہوتے ہیں، اور ہر ایک اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی
जो है रिजल्ट अकाउंटिंग जारी है। अकाउंटिंग के बाद फिर बहुत बड़ा जश्न करेंगे। जो बंदा जीत जाएगा उसके लिए उसके कैंडिडेट और उसके दूसरे जो सपोर्टर है वो खुशी मनाते हैं और इतना बेहतरीन यहाँ पे जश्न होता है। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब अपने अपने, क्योंकि काला कोट है, वकला, सब में इत्तेहाद है। लेकिन इस तरह ये इंतखाबात का अमल बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम होता है और जीतने वालों को एक्सेप्ट करते हैं और जो नहीं जीतते हैं वो भी उसकी हमायत में कहते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये सालाना जो है 1 साल का हमारा टर्न आउट होता है और उसके बाद जो है पूरा साल वो फिर जो इंतखाबात में जीत जाए वो खिदमत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप बताइएगा कि वोटिंग की क्या पोजीशन रही और क्या साबका बॉडी आपके मसाइल हल करने में कामयाब रही थी? जनाब, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, अदबी नाम मुझे उकाब कहते हैं। और ये है कि हालात मई कदे के करवट बदल रहे हैं, साकी बहक रहा है, साथी संभल रहे हैं। पिछली जो बॉडी है उसकी बिल्कुल कारकर्दगी से कोई वकील मुतमईन नहीं थे ताकि उसमें वो लोग सामने नहीं आए। और रही बात राव जाहिद साहब की, वो बिला यानी एक तासुब सब लोगों की खिदमत करता है और गुज़रे हुए एक्स प्रेसिडेंट भी हैं और मुख्तलिफ सालों में लगातार वो काम कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो अभी बड़ी अक्सरियत से जीतेगा और खिदमत भी करेगा। बाकी रही बात जो गुज़श्ता बॉडी है उससे कोई वकील मुतमईन नहीं है, इसीलिए उनमें से कोई आदमी सामने नहीं आया। अभी तक वो खड़े नहीं हो पाए क्योंकि उनका काम नहीं था। अब वो नाकारा हो गए तो चले गए। आज सारा दिन वो रही टर्न आउट की, तो मेरे ख्याल में टर्न आउट सिर्फ इस मरतबा जो को प्रैक्टिशनर वकील हैं वही पहुँचे हैं, उन्होंने ही वोट डाला है और जो स्लीपिंग लायर हैं वो नहीं पहुँच सके हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला राव जाहिद साहब जीतेंगे और सब वकला की खिदमत करेंगे। जी बिल्कुल, सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजांची और इसके अलावा मैनेजिंग कमेटी के 33 उम्मीदवारों में यहाँ पर कांटे का मुकाबला जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इनका यही कहना है कि साबका बॉडी जो है इनके मसाइल हल करने में नाकाम रही, लेकिन मौजूदा बॉडी से ये पूरी उम्मीद बांधते हैं कि वो इनके तमाम तर मसाइल जो अरसे दराज से हैं उन्हें हल करने में जो है अपना कलीदी अदा करेगी। जी, एक बार फिर रुख करते हैं कराची बार का, जहां इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है। मुमताज़ जमाली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद अपडेट्स उनसे ले लेते हैं। मुमताज़, बताइएगा आप क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, इस वक्त हम सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। कराची बार के सालाना इंतखाबात में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ चुके हैं। एडवोकेट आमिर सलीम जो हैं भारी बर्तरी से अक्सर से कामयाब हैं। आमिर साहब, क्या कहना है इस खुशी में? क्या कहना है इस खुशी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन लोगों ने इतनी मेहनत की है और इतनी मोहब्बत का इजहार किया है, उनकी मेहनत आज रंग लाई है। ये आज मैं नहीं जीता, मेरे दोस्त सारे जीते हैं। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि ये खुद नहीं जीते बल्कि इनके दोस्त जीते हैं। आप देख सकते हैं कि मनाजिर हैं और वकला जो है वो जश्न मना रहे हैं। इस वक्त भी सख्त नारेबाजी हो रही है, खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये मनाजिर आप जो हैं खुसूसी मनाजिर यहाँ देख सकते हैं कि इनको फूलों के हार पहनाए गए हैं और अजरख भी जो है पहनाई गई हैं। एडवोकेट एहसन सयाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना है आपका? बहुत शुक्रिया, हम कराची बार का शुक्रिया अदा करते हैं कि वकला साहबान ने हमारे पे एतमाद किया और आमिर सलीम साहब को तमाम बहुत बड़ी लीड से जितवाया। बहुत बड़ी लीड से जो है आमिर सलीम जीत चुके हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं। नायब सदर की नशिस्त पर मुमताज़ अली मेहदी जो है वो कामयाब हो गए, जबकि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इस वक्त जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं वो आलम अब्बासी जो है फाते हो गए हैं। ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इम्पोर्टर्स के सालाना इंतखाबात इनकलाब पैनल ने मैदान मार लिया है। चौधरी आमिर अली खान सदर मुंतखब हो गए हैं, जबकि चौधरी आमिर ने 177 वोट लिए हैं। आज़ाद पैनल के जमील ने 99 वोट हासिल कर लिए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इम्पोर्टर्स के सालाना इंतखाबात हुए हैं और इनकलाब पैनल ने इसमें मैदान मार लिया है। चौधरी आमिर अली खान सदर मुंतखब हो गए हैं। शाहजेब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद अपडेट्स वो शेयर करेंगे। जी शाहजेब।
मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ जमशेद रोड से, जहाँ पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो है सालाना इंतखाबात का सिलसिला जारी था। जो है 2 पैनल यहाँ से मुंतखब हुए थे जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, और यहाँ पर सुबह 11:35 से जो है वोट कास्टिंग का अमल शुरू हुआ, जो कि 5:35 तक जो है जारी रहा। 6 घंटे का ये वक्त था और 288 जो यहाँ पर वोटों की जो है तादाद थी। 272 अफराद ने जो है वोट कास्ट किए हैं, और इनकलाब पैनल जो कि चौधरी आमिर भाई है, जिन्होंने यहाँ से जो है इनकलाब पैनल के तवज्जुह से जो है ये मैदान मान लिया है। ये बताएगा आमिर भाई, कैसा लग रहा है कि आज आप लोग जीत चुके हैं, और जिस तरीके से देखा गया कि दूसरा जो आपके मुकाबिल पैनल था उसने 99 वोट हासिल किए हैं, कैसा रहा मुकाबला आज सारा दिन, और आइंदा का क्या लाए अमल है? अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से ये 4th इलेक्शन है जिसमें इस्लामिया जोन की आवाम ने हमें 4थी दफ़ा इलेक्ट किया, और हमेशा माशाल्लाह ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा वोट इस मार्केट में हमें मिलते हैं। और यही वजह है कि जिसके भी कोई प्रॉब्लम होते हैं, वो हमारी जो इनकलाब पैनल की पूरी टीम है वो बिल्कुल इस तरह खड़ी होती है जैसे अपनी फैमिली का मसला है। जी बिल्कुल, जो इनके मुकाबिल जो पैनल था वो आवाज़ पैनल था, जिसका इंतखाबी निशान शाहीन था, जिसने 99 वोट हासिल किए हैं, जबकि ये जो 6 घंटे का वोट कास्टिंग का अमल था वो बिला तात्कुल जो है जारी रहा। ताहम यहाँ पर जो है जश्न का समा है, ढोल की टाप पर जो है रक्स भी किया जा रहा है, और जो है यहाँ के जो कारकुनान है, जो इनकलाब पैनल के वो जश्न मनाते दिखाई देते हैं। जी, PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार की सदारत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की तहरीक। PTI की रैली इंसाफ हाउस से रवाना हो चुकी है। बिलाल गफ्फार कहते हैं कि मुल्क बहरान का शिकार है, इसका हल फौरी इलेक्शन है। मज़ीद बता रहे हैं इम्तियाज़ अली। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीज़न की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नाम से जो है रैली शुरू कर दी गई है। इस वक्त मैं इंसाफ हाउस के बाहर मौजूद हूँ। बिलाल गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस रैली का मकसद क्या है, कौन से रहनुमा जो हैं वो इस रैली में शरीक हो रहे हैं। बिलाल साहब बताइएगा कि कौन इस रैली में शरीक हो रहा है और क्या समझते हैं, क्या मकसद लेके निकले? एक ही मकसद, एक ही डिमांड कि इस मुल्क में जो इंतशार है उसको ख़त्म करने के लिए इस मुल्क में फेयर, फ्री एंड फ्रेश इलेक्शंस कराई जाएं। जो इकोनॉमिक तबाही हो गई है उससे निकलने के लिए एक ही हल है कि मुल्क में नया फ्रेश मैंडेट कॉल किया जाए, और हमारा मुतालबा है कि फिर फौरन नए इलेक्शंस कराए जाएं। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनके 8 महीने जो इन चोरों के हैं, पूरे कराची की आवाम ने, पूरी पाकिस्तान की आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। कौन से रहनुमा आज की इस रैली में आपके अलावा? अभी इसमें थोड़ी देर बाद हमारे सिंध के सदर और साबका MNA NA 244 जिनका ये हल्का है, वो भी इस रैली में हमें महमूदाबाद से ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, बिलाल गफ्फार की बात आपने सुनी। उनका कहना है कि इस रैली का मकसद जो है वो ये है कि फौरी तौर पे जो है इलेक्शन कराया जाए। इस रैली में बिलाल गफ्फार के अलावा साबिर अली जैदी भी शरीक होंगे। जी, इंटरमीडिएट पार्ट 2 कॉमर्स रेगुलर ग्रुप के सालाना इम्तहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। पहली पोजीशन लाइबा अली, दूसरी पोजीशन तूबा उमैर और तीसरी पोजीशन सैयदा नज़ल ने अपने नाम की है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद। जी बिल्कुल, आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से साल 2022 कॉमर्स हिस्सा दोम रेगुलर के नताइज का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। और नताइज का जो ऐलान नाज़िम इम्तिहानात इंजीनियर अनवर अलीम खान ज़ादा राजपूत ने किया है, और वो इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त भी मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि रेगुलर ग्रुप कॉमर्स के हिस्सा दोम की जो पहली 3 पोजीशंस हैं वो लड़कियों के नाम जाती हैं। नाज़िम इम्तिहानात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बर वक्त आपने जो है नताइज का ऐलान किया है। इससे पहले प्री मेडिकल का किया, प्री इंजीनियरिंग का किया, अब कॉमर्स रेगुलर का भी जो है आपने ऐलान कर दिया। सर, कामयाबी के तनासुब के हवाले से बताइएगा कि कितना इस फीसद कामयाबी का तनासुब रहा है इम्तिहानात में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। देखें, अभी हमने कॉमर्स रेगुलर का जो रिज़ल्ट हमने जो अनाउंस कराया है उसमें कामयाबी का तनासुब 60% रहा। और रही बात इन बच्चों की कि तमाम ये जो पोजीशंस हैं, और ये देखें ये सारी की सारी मेरिटोरियस बेस्ड हैं, मेरिट बेस्ड हैं। तो ये समझ लें कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। ये बच्चे कॉमर्स रेगुलर के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें लगभग 44,000 से ज़ायद बच्चे इसमें अपेयर हुए इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर, और रिज़ल्ट आपके सामने है।
किसी बच्चे का हक ना मारा जाए। नाज़िम इम्तिहानात इंजीनियर अनवर अलीम खानज़ादा राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। नाज़िम इम्तिहानात ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बर वक्त नताइज का ऐलान किया। इसके अलावा इंटर बोर्ड की बेहतरीन कारकर्दगी को मज़ीद जो है बेहतर बनाने के लिए वो कोशिश भी हमें दिखाई देते हैं, अच्छे से अच्छी की राह में गामज़न दिखाई देते हैं। ताहम रेगुलर ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इसी हफ्ते जो है इसकी मार्कशीट्स भी जारी करने के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो मुतवक्के है कि मार्कशीट्स भी जो हैं जिस तरह नताइज का ऐलान बर वक्त किया गया है उसी तरह जो मार्कशीट्स हैं वो जो है जारी कर दी जाएंगी। जी, कराची प्रेस क्लब में गवर्नर सिंध तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं हमेशा अपनी तकरीर में कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो निज़ाम हुकूमत है उसमें ये एक ऐसा सतून है जिसको हम हमेशा बेसुकून करते हैं और ये हमारे सुकून के लिए काम करता है, क्योंकि जब तक आप तनकीद नहीं करेंगे किसी भी इदारे पे और उसको अच्छाई और सच्चाई का रास्ता नहीं दिखाएंगे तो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग रात दिन काम करते हैं, चाहे फ़ोटोग्राफ़र्स हों, कैमरामैन हों, हमारे सहाफ़ी भाई हों और हमारे GM जमाली तो हर दिल अज़ीज़ GM जमाली हैं और ये भी हर वक्त कोशा रहते हैं आप लोगों की भलाई के कामों के लिए, अच्छाई के कामों के लिए और हुकूमत के साथ लड़ते रहते हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा रिलीफ मिले जिससे प्रेस क्लब के साथियों की भी कुछ ना कुछ भलाई हो सके। क्योंकि ये जिस तरह कराची की सड़कें और कराची का निज़ाम जो है वो जिसे कहते हैं ना हुकूमत भूल के बैठी हुई है, उस तरह शायद प्रेस क्लब को भी भूल के बैठी है। तो इंशाल्लाह बहैसियत गवर्नर सिंह जो कुछ भी मुझसे हुआ मैं ज़रूर करूँगा और मैं समझता हूँ कि कम से कम उस ब्रिज का किरदार मैं ज़रूर अदा कर सकता हूँ जहाँ पर ये मसाइल हल हो सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जब तक मैं इस ओहदे पे हूँ अल्लाह ताला की तरफ से, तो मैं प्रेस क्लब के लिए भी कुछ ऐसा करके गुजरूँ कि आप लोग हमेशा याद रखें। शुक्रिया बहुत। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हवाले से कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हवाले से मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि एक बहुत ही फ़ाल किरदार अदा करते हैं हमेशा से, और आज भी इन्होंने इस हलीम का इनेकाद किया है। तो मैं आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप हर चीज़ में फ़ाल किरदार अदा करें। अच्छा गवर्नर साहब, उसमें सिर्फ एक वो है कि KUJ को सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक सालाना ग्रांट मिलती है, वो तो मिल गई, अभी शर्जील नाम मेमन साहब चेक देकर गए, लेकिन KMC की तरफ से गुज़श्ता कई सालों से जो KUJ की ग्रांट है वो बंद है। अभी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर साहब तशरीफ लाए थे, उनको भी मैंने यही गुजारिश की क्योंकि आप के भी करीब हैं एडमिनिस्ट्रेटर KMC, तो यकीनन हमारी गुजारिश है कि इसको आप ज़रूर देखें कि ये KUJ की जो ग्रांट है वो बंद क्यों है। मैं बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात करूँगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची को MQM पाकिस्तान ने ही नॉमिनेट किया है और MQM पाकिस्तान हमेशा से सहाफ़ी बरादरी के जो भी मसाइल होती है उसमें पेश रहती है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब से ज़रूर बात करूँगा और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मैं पूरी कोशिश करके उसको फ़ाल कराएंगे ताकि वो कंटिन्यू हो सके। गवर्नर साहब, 2 रोज़ पहले एक नौजवान का कत्ल हो गया स्ट्रीट क्राइम में। LED का यूनिवर्सिटी तालिब इल्म था, इंजीनियर था। एक तो स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, उसमें देखने में आ रहा है कि जो तारिकीन वतन हैं वो इसमें मुलव्विस पाए जा रहे हैं और जो कराची के चीफ हैं पुलिस, वो कहते हैं कि मुज़ाहमत ना करें, जो लूटना है उसको लूटने दें। ये बयान आप कैसे देखते हैं कि सिक्योरिटी फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है लेकिन वो इससे बड़ी जिम्मा है? देखें, एडिशनल कराची पुलिस का जो बयान है उसको मैं समझता हूँ कि सभा को सहाज से हट के बात की जा रही है। उन्होंने एक ज़िम्मेदाराना बयान दिया है और मैं समझता हूँ कि इस पर सियासत करना हो तो मैं भी उनके ख़िलाफ़ बात कर सकता हूँ, लेकिन ये सियासत की बात नहीं है, बात है लॉ एंड ऑर्डर की। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो एक जान बचाने की बात कर रहे हैं। मज़ाहमत ना करना कानून हाथ में लेने के बराबर है। अगर कोई भी शख्स मज़ाहमत करता है और अल्लाह ना करे उसकी जान चली जाए तो वो जान जाना हमारे लिए उस जान को बचाना ज़रूरी है या उस मोबाइल का छिन जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एडिशनल पुलिस ने जो बात की है जावेद ओडो साहब ने, उसको आपको इस तर्ज पे लेना चाहिए कि वो एक ज़िंदगी बचाने की बात कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। मैंने भी उनको कई दफ़ा कहा है और वो इस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए क्योंकि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना उनकी ज़िम्मेदारी है और उसको उस ज़िम्मेदारी को उनको पूरा ज़रूर करना चाहिए। शुक्रिया जी, बहुत।
कराची साहब मनाज़िर देख रहे हैं जहां पर गवर्नर सिंध कराची प्रेस क्लब में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हलीम पार्टी में शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी दिया। एम जना रोड पर वाक़ मेडिसिन मार्केट के अतराफ बेहंगम पार्किंग के मसाइल के बायस ट्रैफिक जैम मामूल है। ताजिरों ने एडमिनिस्ट्रेटर से मसाइल के हल की अपील कर दी है। काबिश में मन की रिपोर्ट देखिए। कराची में जगह जगह कायम पार्किंग माफिया ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। सड़क के बीच दोनों लेन में पार्किंग के बाइस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होने लगा। एमेजिना रोड पर वाक़िया मेडिसिन मार्केट ट्रेडर अलायंस के मेंबर जावेद अहमद ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से पार्किंग का मरबूत निजाम बनाने का मुतालबा कर दिया। बाहर एमेजिना रोड है, वो भी ट्रैफिक जाम है, हर वक्त जाम रहती, ज़्यादा कि पार्किंग का लोड उसके ऊपर ज़्यादा है कि मुनज़्ज़म तरीके से पार्किंग का तरीका बनाया जाए, ना कि ऐसा ना हो कि खाली गाड़ियों को भर भर के ले जाया जाए। गाड़ी की पार्किंग का कोई सही उनको जगह दी जाए ताकि गाड़ियां सही तरीके से पार्क हो और गाड़ी लोगों को आना जाना आसान हो। शहरी कहते हैं कि पूरे शहर में ही पार्किंग का मसला है। गाड़ी पार्किंग में खड़ी ना करें तो ट्रैफिक वाले ले जाते हैं। भाई मजबूरी के तहत तो यहाँ खड़ी कर रहे हैं। अब मुझे पता 30 रुपये में यहाँ दे रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है यहाँ। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे पार्किंग में खड़ी करूँगा, 30 रुपये उसको दूंगा, तो मेरा डेली का जो खर्चा है 200 रुपये तो पार्किंग का लगेगा। अब आप ही बताएं हम लोग क्या करें। नए एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान ने ऑक्शन होने तक पार्किंग फीस खत्म करने का ऐलान किया था, मगर ऐलान के बावजूद अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन कयूम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध की जानिब से पकड़ी गई मनशियात जलाने की सालाना तकरीब हुई। तकरीब में पकड़ी गई 7 टन से ज़ायद मनशियात को तल्फ कर दिया गया। दानियाल सैयद की रिपोर्ट। कराची के सुपर हाईवे पर रेंजर शूटिंग रेंज में होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर बराए इंसदाद मुंशियात नवाबजादा शाहजेन बुगडी थे। DGANF मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान और दीगर मेहमानों में गैर मुल्की समेत सीनियर अफसरान, कारोबारी शख्सियात, सिविल सोसाइटी और फनकारों ने शिरकत की। स्कूल के बच्चों ने टैबलों के जरिए मुंशियात के इस्तेमाल से नुकसानात का मंजर पेश किया। नवाबजादा शाहजेन बुगडी ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कारकर्दगी को सराहा। उनका कहना था कि मुंशियात की लानत को माशरे से खत्म करना किसी एक फर्द या इदारे की जिम्मेदारी नहीं। I have proudly appreciated efforts being put by ANF to stop the smuggling and trafficking of drugs from Pakistan. ANF, with the mega resource, infrastructure, manpower, handicap, are doing a commendable job. It is investigating the drug trafficker efficiency besides minimizing its usage through public awareness campaign and treating drug addicts. DGANF मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलिक का कहना था कि ANF हवाई अड्डों और बहरी पोर्ट्स पर मुंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ काम कर रही है। ANF operates in 3 domains. One is the physical or the geographical. We look after the border terminals, we look after the airports, we look after the seaports, we look after the airports, and then we look after the interprovincial boundaries in shape of several police stations. तकरीब में ANF की जानिब से 7.216 टन मुंशियात की गई, जिसकी मालियत $137.72 मिलियन है। कैमरामैन टीम के साथ दानियाल सैयद, सिटी 21। बढ़ती महंगाई के बायस ताजिरों का सब्र जवाब दे गया। सदर ऑल कराची ताजिर अलायंस आसिफ गुलफाम ने एहतजाज की धमकी दे दी। कहा, हर कोई कहता है कि कराची हमारा है, मगर कराची का कोई नहीं। डॉलर की लड़खड़ाहट, डगमगाती मईशत और बढ़ती महंगाई ताजिर बरादरी का सब्र जवाब देने लगा। सिटी 21 से बात करते हुए सदर ऑल कराची ताजिर अलायंस आसिफ गुलफाम ने कहा कि कारोबार को नजर लग चुकी है। शहर में सिर्फ 30% कारोबार रह गया है। पूरा दिन बाजार खुलते हैं मगर कारोबार नहीं है। 30% जो है कारोबार रह गया है इस शहर में। देखिए, मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये कराची का दिल है और ऑल सिटी जो है कराची का हब है बिज़नेस का। इस बिज़नेस को नज़र लग चुकी है, लेकिन इन हुक्मरानों को अकल नहीं आ रही है। आसिफ गुलफाम ने एहतजाज की धमकी देते हुए कहा कि ये शहर पूरे पाकिस्तान को चलाता है, मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। हुक्मरान कहीं भी ताजिर बरादरी के साथ खड़ी नज़र नहीं आती है। कहीं तसल्ली बख्श जो है वो जवाब नहीं आता, कोई राब्ता ताजिरों से नहीं किया जाता। हम आवाज़ उठा के थक चुके हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो कराची की तमाम ताजिर बरादरी
آپ کو احتجاج کرتی روڈوں پہ نظر آئے گی۔ महंगाई के बाइस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने पर ताजिर भी अब आवाज बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन एहसन इकबाल के हमरा, काविश बेमन, सिटी 21। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया से इस वक्त मुखातिब हैं। और उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद भी करनी है। आप सबकी आमद का शुक्रिया, और मैं तवक्को रखता हूँ कि कल के इस फैसला कुन इजलास में, जिसमें मेरी बहनें फैसला करेंगी, उनकी राय लेनी है कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम अमन के खातिर, भाईचारे की खातिर अपने कदम पीछे हटा रहे हैं, कहीं दीवार से हम जाना लगता है, तो हमें अहम फैसलों के साथ आने वाले साल को गले लगाना है। और हम 2013 से ही कह रहे हैं कि 10 साल में तो हमारा रास्ता रोकने वाले अपना रास्ता खोना भी शुरू कर दिया है। उन हाथों ने जिन्होंने हमें रोका और रुकावटें डाली अब थक रहे हैं। लोगों तक ये पैगाम चला गया है कि इस मुल्क की मईशत का, माशरत का, सन्नत का, तिजारत का और नज़रियात का जो कैपिटल है, मरकज़ है कराची और सिंध के शहरी इलाके, जब तक उनके मामलात और पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों, बेटों, माँ और बहनों के हवाले नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगा। हम समझते हैं कि जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है जिस पे चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, लेकिन जिस तरह की जमहूरियत और जितनी जमहूरियत है, वरना दिल की तसल्ली के लिए काफ़ी है, ना पाकिस्तान की अपनी बका के लिए काफ़ी है। तो ज़रूर आइएगा, कल मिलकर सिंध के शहरी इलाकों के बारे में फ़ैसला करें, और यही फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में भी फ़ैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू। बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं कराची से, जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची में कोट अब सस्ते दामों भी दस्तयाब हैं। एम्प्रेस मार्केट में अंदरूनी मुल्क से आए अफराद हर साल सर्दियों में कोट और वेस्ट कोट बेचते हैं। कहते हैं 2 माह के लिए अच्छी कमाई हो जाती है। आदिया नाज की रिपोर्ट। मजदूरों के कांधे ही इनकी दुकानें बन गईं। हर साल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों अफराद सर्दियों में रोजी कमाने की गर्ज से कराची का रुख करते हैं। एम्प्रेस मार्केट की सड़क पर कई ऐसे अफराद देखने को मिलते हैं जो अपने कांधों या मोटरसाइकिलों पर कोट और वेस्ट कोट बेचते हैं। कोट फरोश कहते हैं कि 2 माह के लिए यहाँ कोट बेचने आते हैं। ये सामान नया भी होता है और पुराना भी। वही कोट जो आम मार्केटों में 5 से 8 हजार रुपए में मिलता है, यहाँ सिर्फ 500 रुपए में मिल जाता है। ज़ैनब मार्केट वाले हमसे चाटी उठाते 500-500 रुपए के, वो लोग 3000 साढ़े 3000 रुपए का आराम से बेच देते। 2-3 महीने यहाँ पे आते फिर चले जाते। सर्दी का सीजन यहाँ निकालते? हाँ जी, सर्दी का सीजन यहाँ निकालते। दुकान से अगर लेते तो 4500, 6000, 8000 रुपए तक होते। हम इधर 400-500 रुपए का गरीब आदमी के लिए बहुत पैदा है यहाँ। कोट फरोशों को बताना है कि माल जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया से मंगवाते हैं। शहरी भी यहाँ से खरीदारी से मुतमईन होते हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। जेरी ग्रुप के इश्तराक से कोस्टा कॉफ़ी अब कराची में भी बासानी दस्तयाब होगी। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क के दीगर शहरों के बाद कोस्टा कॉफ़ी अब कराची वालों के लिए भी पेश खिदमत है। DHA फेज़ 6 राया कमर्शल में वाक़ कैफ़े में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में मेज़बान और हेड ऑफ़ प्रोजेक्ट जॉन रिचर्डसन ने शुरका को खुशामदीद कहा। तकरीब में CEO गेरीज़ ग्रुप महविश रफ़ी और ओप्स UK के सरबराह तरलोक सेमदिन ने भी शिरकत की। इस मौके पर शुरका को फ्लैट वाइट और ब्रांड के मशहूर मोका टालिया सिग्नेचर ब्लेंड के साथ तैयार करदा कोस्टा कॉफ़ी मशरूबात की एक रेंज पेश की गई। जॉन रिचर्डसन ने कहा, कोस्टा कॉफ़ी ने पाकिस्तान के बाद दीगर शहरों के बाद अब कराची का रुख कर लिया है। हम कॉफ़ी के शौकीन अफराद को मायूस नहीं करेंगे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।